Morning. Today's subject is legal ethics, in which today we'll discuss about the bench bar relationship. Bench bar relation in law refers to the cordial relationship between the advocates and the judges. The bar means advocate and the bench means the judges play an important role in the administration of justice. The judges administer the law with the assistance of the lawyers. The lawyers are the officers of the court. They are expected to assist the court in the administration of justice. As the officer of the court, the lawyers are required to maintain a respectful attitude towards the court, bearing in mind that the dignity of the judicial office is essential for the survival of the society. Mutual respect is necessary for the maintenance of the cordial relationship between the bench and the bar. The opinion of the Supreme Court in the context of bench and bar relationship has been clearly laid down in P.D. Gupta versus Ramamurthy and others case AIR 1998 Supreme Court as follows. A lawyer owes a duty to be fair not only to his client but also to the court as well. To the opposite party in the conduct of the case, administration of justice is a stream which has to be kept pure and clean. It has to be unpolluted. Administration of justice is not something which concerns the bench only, but it concerns the bar as well. The bar is the principal ground for recurring judges. Nobody should be able to raise a finger about the conduct of a lawyer. Actually, judges and lawyers are complementary to each other. The primary duty of the lawyer is to inform the court as to the law and facts of the case and to aid the court to do justify or justice by arriving at the correct conclusion. Good and strong advocacy by the counsel is necessary for the good administration of the justice. Consequently, the counsel must have freedom to present his case fully and properly and should not be interrupted by the judges unless the interruption is necessary. देखिए, बेंच बार रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बेंच का मतलब क्या होता है और बार का मतलब क्या होता है। तो बार से यहाँ पर अभिप्राय होता है अधिवक्ताओं का जो समूह होता है उसे हम बोलते हैं बार, और बेंच से हमारा अभिप्राय होता है जजेस जहाँ पर बैठते हैं, जो सीट होल्ड करते हैं, जहाँ पे उनका पदस्थापन होता है, उसे हम बोलते हैं जजेस का बेंच। तो बेंच बार रिलेशनशिप जो हुआ वो अधिवक्ता और जजेस के मध्य का संबंध हुआ। अब ये संबंध क्यों ज़रूरी है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? तो इसका मुख्य कारण है, सबसे जो इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है न्याय प्रशासन में। न्याय प्रदान करने में अधिवक्ता और जजेस का जो रोल है वो इम्पोर्टेंट होता है। कैसे? देखिए, जजेस जो है वो अधिवक्ताओं की सहायता से ही न्याय प्रदत्त करते हैं। एक अधिवक्ता वो व्यक्ति होता है जिसे हम न्यायालय का अधिकारी भी कहते हैं और उससे ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो न्याय प्रशासन में जजेस की मदद करेगा, बेंच की मदद करेगा। इसके लिए ये आवश्यक है कि लॉयर जो है, अधिवक्ता जो है, वो ना केवल अपनी जो बेंच है, जजेस हैं, उनका रेस्पेक्ट करे, बल्कि उसका आचरण ऐसा हो जो अपने क्लाइंट के साथ साथ जज, जुडिशियल ऑफिसर्स और
जो अपोजिट पार्टी है उसके प्रति भी रेस्पेक्टफुल हो, क्योंकि हमारा जो समाज है वो बेंच बार रिलेशनशिप पर ही टिका हुआ है और ये जो रिस्पेक्ट है वो म्यूचुअल रेस्पेक्ट से ही आता है। इसका मतलब अधिवक्ता भी बेंच का, अपने क्लाइंट का, अपने अपोजिट क्लाइंट का रिस्पेक्ट करें, वहीं दूसरी तरफ जो बेंच है उसका भी कर्तव्य हो जाता है कि वो भी अधिवक्ता और उनकी पार्टीज़ को रेस्पेक्ट दे। इस पर एक बहुत ही अच्छा केस पीडी गुप्ता वर्सेस राममूर्ति का है जो 1998 में डिसाइड हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियर शब्दों में लिखा है, अ लॉयर ऑज अ ड्यूटी टू बी फेयर नॉट ओनली टू हिज क्लाइंट बट ऑल्सो टू द कोर्ट। एक अधिवक्ता का जो कर्तव्य होता है वो केवल अपने मुवक्किल, अपने क्लाइंट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो जो है अपने न्यायालय तक भी जाता है। उसका दायित्व जो है वो न्यायालय तक भी है, क्योंकि इससे न्याय प्रशासन में मदद मिलती है। आगे उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज़ नॉट समथिंग विच कंसर्न द बेंच ओनली। देखिए, न्याय प्रदान करना केवल जजेस का ही काम नहीं है, इट कंसर्न्स द बार एज वेल। उसमें अधिवक्ताओं का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। कैसे? द बार इज़ द प्रिंसिपल ग्राउंड फॉर रिक्रूटिंग जजेस। देखिए, बार का जो काम होता है वो क्या होता है, जब कोई जज न्याय प्रशासन में उनसे मदद मांगता है तो वो उनकी मदद करते हैं विविध तरह के लॉज, केस लॉज बता करके, और जो भी लेटेस्ट कानून होता है उसको बता करके बेंच की मदद करते हैं न्याय प्रदान करने में। इसके अलावा देखिए, जजेस एंड लॉयर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है कि जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। बिना अगर हेड हटा दें तो वो सिक्का चलेगा नहीं, या टेल हटा दें तो भी वो सिक्का नहीं चलेगा। तो समाज में न्याय प्रदान करने के लिए जो है वो बेंच और बार का रिलेशन जो है बहुत ज़रूरी होता है, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे के बिना उनका अस्तित्व भी नहीं के बराबर होता है। लॉयर्स की प्राइमरी ड्यूटी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉयर की प्राइमरी ड्यूटी होती है कि वो न्यायालय को विधि और तथ्यों के जो केस से संबंधित जो तथ्य हैं उनके बारे में बताए और न्यायालय की सहायता करे कि वो प्रॉपर निर्णय पर पहुंच सके। Good and strong advocacy by the council is necessary for the good administration of justice। देखिए, बहुत ही बढ़िया बात कही गई है कि एक अधिवक्ता अपने तथ्यों पर और कानून पर उसकी पकड़ जितनी अच्छी होगी, जितने अच्छे से वो न्यायालय को अपनी बात समझा पाएगा, उतना ही अच्छा न्याय जो है वो समाज को मिल पाएगा, समाज को प्रदान कर पाएगा न्यायालय। इसी के साथ साथ ये भी बताया गया है कि काउंसिल मस्ट हैव फ्रीडम टू प्रेजेंट हिज केस फुली एंड प्रॉपरली एंड शुड नॉट बी इंटरप्टेड बाय द जजेस अनलेस द इंटरप्शन इज रिक्वायर्ड। देखिए, ये कहा गया है कि अधिवक्ता को अपना केस जो है वो एक्सप्लेन करने की छूट होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का अवरोध नहीं होना चाहिए जब तक कि अधिवक्ता विधि और तथ्यों से संबंधित बात करता हो। लेकिन यदि आवश्यक हो, अधिवक्ता अपनी सीमा को भूलकर विधि और तथ्यों के अलावा कुछ और बोलता है तो न्यायालय उसे रोक सकता है। तो देखिए, बेंच और बार रिलेशनशिप पे आज हमने बात करी, तो दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों में ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है और दोनों के सहयोग के बिना अच्छा न्याय हमारे समाज को नहीं मिल सकता। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, बेंच बार रिलेशनशिप। होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।